Hello learners, welcome to Others English classes and today I am going to discuss very famous topic that is Mithila painting, class 8 chapter 3rd English literature. And today I am going to discuss all question answer along with reference question. So let's start it. Your very first question is time to answer. So mark these sentences as true or false. You have to do true or false. So option 1 is Mithila painting is an art from practiced in Mithila region of Bihar, Nepal. Bihar, India and Nepal. So बिहार इन इंडिया, इंडिया में और नेपाल में मिथिला पेंटिंग का यूज किया जाता है. यस, इट इज ट्रू. इट इज ट्रू. नेक्स्ट वन, मिथिला पेंटिंग कैन बी क्लासिफाइड into categories so such as floor painting, wall painting and canvas painting. It is also true. Third one is the folk style is said to date back to the ancient era of the Mahabharata. No, that is not true because it is considered as a Mahabharata. Mithila, Janak ji, Sita ji, Mahabharata. Next one is D number. Mithila painting is primarily practiced by the man folk. No, not man folk. It is women. ये सबसे प्राइमरली विमेन के लिए होता है, ये बनाती हैं. क्वेश्चन नंबर डी इज ट्रेडिशनली आर्टिस्ट यूज नेचुरल डाई एंड पिगमेंट्स. यस, इट इज ट्रू. नंबर ई विल बी ट्रू. एंड द लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज थीमेटिकली मिथिला पेंटिंग्स आर मोस्टली बेस्ड ऑन द प्लांट्स, trees, birds and animal. Yes, that is true. Now come to the question number B. Answer this question in 30 to 40 words. You have to reply in 30 to 40 words. Your very first question is question A. What is Mithila painting and where is it practiced? तो मिथिला पेंटिंग क्या है और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, कहाँ पे बनाया जाता है? सो योर आंसर इज मिथिला पेंटिंग ऑल्सो नोन एज मधुबनी आर्ट. It is traditional art from originating from the Mithila region of Bihar, India. It practiced predominantly by the women, है ना? Predominantly by the women in Mithila region, surrounding area, and Mithila paintings typically features intricate designs, variant color, and depicts theme from the Hindu mythology and nature and everyday life. It's renowned from its detailed pattern and culture significance. So it was your first answer. Now come to the question number 2. Question number B is how does it represent the life of the people of the region it belongs to? कैसे ये पेंटिंग्स हैं जो लोगों के लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, जो इनसे जुड़े हुए हैं? सो योर आंसर इज मिथिला पेंटिंग रिप्रेजेंट द लाइफ ऑफ द पीपल थ्रू इंट्रिकेट डिजाइन, अपने डिजाइन के द्वारा, एंड वेरिएंट कलर्स डिपिक्टिंग थीम्स फ्रॉम द हिंदू मैथोलॉजी, नेचर एंड एवरीडे लाइफ, एंड शोकेजिंग द नेचुरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशंस ऑफ द रीजन. तो अपने कल्चर को दिखाता है और अपने हेरिटेज ट्रेडिशन को, अपने एरिया के ट्रेडिशन को शो करता है, पौराणिक कथाओं को दर्शाता है. इस तरह से ये शो अप करता है. हिंदू मैथोलॉजी में राम श्री कृष्ण भगवान, राधे कृष्ण, राम सीता, वैष्णव पुराण, ये सब आते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर सी. Question number C is how is the art from believed to have started and who practices it primarily? So how is that art? कैसे इस पर बिलीव करते हैं लोग, कैसे स्टार्ट करते हैं और प्राइमरीली इस पर कौन ज़्यादा वर्क करता है? So your answer is
मिथिला पेंटिंग इज बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड इन मिथिला रीजन ऑफ बिहार। ये कहाँ से माना जाता है ऐसा कि ये जो मिथिला पेंटिंग है ये बिहार से ओरिजिनेट हुआ है इंडिया में, एंड डेटिंग बैक टू एंशियंट टाइम्स, एंड legends has it that emerged as a form of decorative art and practiced by the women to adorn the walls of their homes during wedding and festival. Yes, it is also mentioned in the wedding of the Rama and Sita कि राम और सीता के समय से जनकपुरी को सजाने के लिए मिथिला पेंटिंग का यूज किया गया था। And primarily it is practiced by the women. The Mithila region and surroundings area where it has been passed down through generation as the cultural tradition and a means of artistic expression. महिलाओं के द्वारा इसको बहुत ही प्राथमिकता दे करके बनाया जाता है और इसी को पास थ्रू द जनरेशन किया जाता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इसको आगे इम्प्लीमेंट किया जाता है, बढ़ाया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर डी इज व्हाट आर द थीम्स ऑन विच मिथिला पेंटिंग्स आर बेस्ड। किस पर बेस्ड है ये मिथिला पेंटिंग्स जो है, ये किस पर बेस्ड है, थीम क्या है इसका। नाउ योर आंसर इज द मिथिला पेंटिंग्स आर बेस्ड ऑन द थीम्स सच एज हिंदू डेटीज, हिंदू देवी देवताओं पर, रिलीजियस एंड रिचुअल नेचर, एनिमल्स, विलेज लाइफ, सोशल इवेंट्स रिफ्लेक्टिंग द कल्चरल एंड सोशल फैब्रिक ऑफ द रीजन। तो ये हिंदू देवी देवताओं को दिखाता है, धर्म को दिखाता है, रिचुअल को दिखाता है, एंड नेचर को, एनिमल्स को, विलेज लाइफ को, ये सब कुछ इस पर इसी पर ये बेस्ड है, इसका थीम ही यही है। नाउ क्वेश्चन नंबर ए, सो योर क्वेश्चन इज सेइंग दैट what write a few lines about the tools, implements and colors used by the मिथिला पेंटिंग आर्टिस्ट, कि वो आर्टिस्ट कौन कौन सा टूल यूज़ करते हैं, कौन कौन सा सामान यूज करते हैं, उनका एड्स क्या है, किन सामानों के जरिए वो अपने कलर को फुलफिल करते हैं। सो योर आंसर इज Mithila painting artists typically use natural brushes made from twigs, bamboos, or fingers, and natural pigments derived from the plants and minerals, and a variety of implements like cotton cloths and brushes for fine detailing. तो ये लोग जो हैं नेचुरल चीज़ों का यूज करते हैं, बेम्बू का ब्रश बनाते हैं, नेचुरल ब्रश बनाते हैं, उंगलियों की हेल्प लेते हैं, नेचुरल पिगमेंट अप्लाई करते हैं, प्लांट से और मिनरल से कलर ये लोग लेते हैं, और इस तरह से मधुबनी पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग को उकेरा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर डी ई, क्वेश्चन नंबर एफ, what are the motifs that can be commonly observed in मिथिला पेंटिंग्स। तो वो कौन सा आइडिया है, मोटिव है, आइडिया है दैट कैन बी कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है मिथिला पेंटिंग में, किस तरह के मोटिव्स को, आइडिया को ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, सो योर आंसर इज कॉमन मोटिव्स इन मिथिला पेंटिंग इंक्लूड पिकॉक्स, फिश, लोटस फ्लावर्स, ट्रीज, एलिफेंट, सन एंड मून। तो इन सारे को आइडिया बनाकर उस पेंटिंग को बनाया जाता है, इन सबको मोटिव बनाकर, कॉमन मोटिव इन सबको, इन्हीं सब का ड्राइंग बनाया जाता है। एंड जियोमेट्रिक पैटर्न्स एंड सीन्स फ्रॉम हिंदूज एपिक लाइक रामायण एंड महाभारत। तो और रामायण से कैरेक्टर लिए जाते हैं, राम का, सीता का, जनक जी का, महाभारत से कैरेक्टर लिए जाते हैं, श्री कृष्ण भगवान का, और इस तरह से मधुबनी और मिथिला पेंटिंग्स उकेरा जाता है, बनाया जाता है।
Question number G. What are the sources of the various colors that are best in मिथिला पेंटिंग्स? तो मिथिला पेंटिंग्स में सबसे बेस्ट क्या है? So, your answer is the various colors used in मिथिला पेंटिंग्स are sourced from natural materials. ये लोग इनका सबसे ज़्यादा कौन सा कलर यूज करते हैं? They all are using the natural materials such as turmeric. येलो कलर के लिए हल्दी यूज करते हैं. ब्लू कलर के लिए इंडिगो, दे आर यूजिंग इंडिगो फॉर ब्लू, एंड दे आर यूजिंग राइस पाउडर फॉर वाइट कलर, एंड लेम्पैक ब्लैक कलर के लिए ये लोग काउ डंग का भी यूज़ करते हैं, एंड वेरियस लीव्स एंड फ्लावर्स फॉर अदर्स यूज़. तो और सारे कलर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ये लोग यूज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर H. Who is Bharti Dayal and what role she has played in the popularization of the earth form? तो वो पॉपुलराइजेशन के लिए कैसे वो फेमस हुई हैं, उसके लिए उन्होंने क्या ऐसा काम किया था, कौन सा ऐसा रोल प्ले किया है उन्होंने जिसके कारण से वो इतनी पॉपुलर हो गई हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर H. सो भारती दयाल इज अ रिनोव्ड मिथिला पेंटिंग. वो एक रिनोड है, उन्हीं से ये मिथिला पेंटिंग आया है. आर्टिस्ट नॉन फॉर हर इनोवेटिव अप्रोच एंड मॉडर्न इंटरप्रिटेशन of the traditional art form. It means he is the pioneer of the मिथिला और मधुबनी आर्ट. We can say that. ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि वो एक तरफ से पायोनियर है, क्योंकि वो आर्टिस्ट हैं, इनोवेटिव है, और इंटरप्रिटेशन है, मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है, ट्रेडिशनल आर्ट भी उनके हाथों में है. She has played a significant role in the popularizing मिथिला पेंटिंग्स. मिथिला पेंटिंग को पॉपुलराइज करने के लिए, उनकी पॉपुलरेशन को बढ़ाने के लिए इसने बहुत काम किया है. नॉट ओनली इन अ स्मॉल वे बट पेंटिंग ग्लोबली थ्रू हर एग्जीबिशंस एंड वर्कशॉप. तो वो अपने एग्जीबिशंस में लगाती थी पेंटिंग्स को, और अपने वर्कशॉप में भी वो मधुबनी पेंटिंग्स को लगा करके उनको पॉपुलर करने की कोशिश करती थी. सो वी कैन से दैट द भारती दयाल is the pioneer of this painting. Now I think we have finished all questions along with answer. Thank you so much for watching. We will meet again with the next video. Thanks for watching.